नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। आज सुप्रीम कोर्ट में अजीब वाकया हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। एक वकील साहब के तेवर देख सीजेआई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि देश के चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी तक बुलानी पड़ी। भरी कोर्ट में एक वकील की जिद और बार बार रोक टोक से सीजेआई इतना गुस्सा हो गए कि पारा न सिर्फ 7वें आसमान पर पहुंचा, हालात ऐसे हुए कि दोनों के बीच तल्ख बहस हुई, नोक-झोंक हुई और देखते ही देखते एक दूसरे को दोनों वकील साहब और जज साहब नसीहतें तक देने लगे। न्याय के मंदिर में तू-तू मैं-मैं का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दिलचस्प यह है कि इन दोनों के बीच ऐसी बहस पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई दफा दोनों के बीच कोर्ट रूम के अंदर ठन चुकी है। पुरानी कहानी है इसके पीछे और जो विवाद की जड़ है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले आपको वकील साहब का नाम बता देता हूं। उनका नाम है मैथ्यूज नेदुम्परा। शायद आपको इनके नाम से ही कुछ पुराने किस्से याद आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुनवाई के वक्त सीजेआई से ये साहब डांट खा चुके हैं। और आज नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर जब सुनवाई चल रही थी तब एक बार फिर से तकरार देखने को मिली दोनों के बीच में, जिसका वीडियो हमारे पास है, जिसे हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि किस तरह दोनों के बीच हॉट टॉक हुई, नोक-झोंक हुई। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपने एक आदेश में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन इस फैसले के आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। जब कोर्ट में सुनवाई के वक्त सीजेआई लगातार वकील साहब को चुप कराते रहे और फिर नौबत सिक्योरिटी बुलाने तक आ गई। दोनों के तेवर देख लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहस की वजह जैसा मैंने कहा आपको बताऊंगा। पहले दोनों के बीच ये जो तनातनी हुई है, ये जो घमासान छिड़ा कोर्ट रूम के अंदर, उसका जरा वीडियो देख लीजिए। Answer when I wanted to speak, your lordship prevents me. You please sit down. No, I'm among the lawyers here. I am the senior most. Sorry, you're not an amicus. I am not appointed. No, I'm appearing for 16 students. Right. When I wanted to speak, the Honorable Chief Justice prevent me from speaking. Mr. And I have an answer. He is arguing. You will not interrupt him when he's arguing. I'm not interrupting, but I have an answer to say. I have an answer to give. You don't answer my question. He's answering the question. Okay, then, but it's a general question. It's a general question. Telling you he's on his No, I'm not interested in the engagement with the Honorable Chief Justice, but I wanted to say. You please sit down. I'll have you removed from the court. You please sit down. I'm warning you. I'll have to have you removed from the court. Your lordship doesn't respect me. I on my own will leave. Mr. Matthews, I'm telling you one very simple thing. Mr. Huda is engaged in a... Your lordship, I have tried every best to allow me to speak and put on my convention. Right to intervene. I'm not intervening, I'm leaving. Yes. But one thing is said, I wanted to say, I wasn't allowed to speak. Yes, Mr. When I was speaking, your lordship was showing the other side. Yes, Mr. And I have only one word to say. Only yes, one word leaving. Mr. One Matthews, word to say. Please call the security people, have him removed from the court, please. I have only one to answer. You will not say anything. You will not speak to the gallery. You will listen to me. I'm in charge of my courtroom. Listening. You just keep quiet now. Yes, Mr. Huda. Yes, Mr. Huda. Yes, Mr. Huda. I'm leaving. Yes, Mr. Huda. Unfair. Yes, Mr. Huda. Please. This is not a judicial. Mr. Matthews, I will now be constrained to issue something which is very unpleasant. Please keep quiet. Sit down here. You want to leave? It's your choice. I'm leaving. You don't have to. You do not have to intervene. You don't have to tell me that you are leaving. Yes. No, because I sought permission. I sought permission to speak. Matthews, you will not interrupt Mr. Huda. I will hear you, but I'll hear you after Mr. Huda is done. I am in charge of procedure in this court, and I've seen the judiciary for the last 24 years. I will not allow any lawyer to dictate the procedure of the court. I will give you a full hearing, but after Mr. All right. Yes. I have been judiciary since 1979. Yes. Since 79. May I, my lord, This is contemptuous. What you are talking? my response is, my lord, straight away. I am leaving. Issue is no longer res integra. Yes. This has been answered in para 20 in Tanvi Sarwal's case. Yeah. And the proposition is like. तो सुना आपने किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार एडवोकेट मैथ्यूज को नसीहतें दे रहे हैं। कहते रहे कि आप बैठ जाइए, पहले कोर्ट रूम में मौजूद दूसरे वकील को बोलने दीजिए, लेकिन नेदुम्परा अपनी सीनियरिटी का हवाला देने लगे। कहने लगे कि आई एम मोस्ट सीनियर मोस्ट।
जस्टिस चंद्रचूड़ कहते रहे कि आपको हुड्डा के बाद सुना जाएगा, लेकिन मेदुम्परा कहते रहे कि मैं सबसे सीनियर हूं। जिसके बाद चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में दो टूक कहा कि इस कोर्ट रूम का इंचार्ज मैं हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पर सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इसी बीच मैथ्यूज नेदुम्परा बार बार टोकने लगे और फिर चंद्रचूड़ ने उन्हें वरिष्ठ वकील हुड्डा को बीच में न टोकने की सलाह दी, लेकिन वो जिद करने लगे। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप नरेंद्र हुड्डा की दलील पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। इस पर नेदुम्परा नाराज हो गए। उन्होंने भरी कोर्ट रूम में कहा कि वो कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं। इससे गुस्से में तिलमिला उठे सीजेआई और तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर उन्हें बाहर करने का आदेश दे दिया। इस पर नेदुम्परा ने कहा कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं। इस पर सीजेआई फिर से कहते हैं कि आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं पिछले 24 साल से जुडिशरी को देख रहा हूं, मैं वकीलों की अदालत की प्रक्रिया तय करने की इजाजत नहीं दे सकता। इस पर नेदुम्परा फिर जवाब देते हैं, फिर बोलते हैं, कहते हैं कि मैं 1979 से जुडिशरी से जुड़ा हूं। दोनों के बीच तल्खियां खूब हुई। इसी केस की सुनवाई के दौरान एक बार पहले भी दोनों की बहस हो चुकी है। आपको याद होगा जब इसी साल मार्च में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विवाद छिड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, पूरे देश की नजरें थी उस पर। तब उस दौरान 18 मार्च 2024 को लेकर 24 के दिन भी दोनों के बीच जमकर तल्खियां देखने को मिली। सीजेआई ने तब भी फटकार लगाई थी, भड़क गए थे और कहा था कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कौन सही है इनमें कौन गलत है वो सब आप तय कीजिए। लेकिन 18 मार्च 2024 का वीडियो भी आपको जरा ध्यान से सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए, ताकि आप भी अंदाजा लगा सकें कौन सही कौन गलत। Board before us. Sir, I have got it with I've made myself. My lord, the entire judgment One has. second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Raghi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute recidicator. This judgment doesn't constitute constitute recidicator. One second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You're It is- not. 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this. There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship committed says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative do process at all. not, please, once we have said no, please move the application. अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत में इस तरह की कलह ठीक है क्या? हालांकि 4 महीने के भीतर दोनों के बीच ऐसी रशाकशी का यह दूसरा मामला है, लेकिन इस बार बहस यहां तक बढ़ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को सिक्योरिटी तक बुलानी पड़ी। दोनों में कौन सही है कौन गलत है ये तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन न्याय के मंदिर में जो ये तल्खियां बढ़ी, जो ये आपस में जो विवाद हुआ, जो तीखी नोक-झोंक हुई, जो जमकर बहस हुई, नसीहतें एक दूसरे को दी गई, उसको लेकर थोड़ा जो इंसाफ की उम्मीद में जो लोग बैठे होते हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबका अपना अपना मत है। कोई सीजेआई को सही ठहरा रहा है तो कोई वकील को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि भाई वो भी अपनी जगह सही है। कोई कह रहा है कि कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो कोई कह रहा है कि वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये दोनों वीडियो सुनेंगे, अगर आपने सुने होंगे, आप पूरा ध्यान से समझे होंगे, तो आप तय कीजिए कि कौन सही है कौन गलत।